IMS کے ڈیمو ویڈیو میں خوش آمدید۔ IMS انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ سسٹم کسی بھی ادارے کو منظم رکھنے کے لیے ایک بہت ہی کارآمد ویب بیسڈ آن لائن ایپلیکیشن ہے۔ اس کے حصول کے بعد کھاتے نامے سے مکمل طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام سٹاف اور اسٹوڈنٹ اور والدین کے ریکارڈ کو اچھے طریقے سے مینیج کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی رپورٹ سے آگاہ رکھتا ہے اور اسکول کے اکاؤنٹس کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتا ہے۔ یہ سٹاف اور اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتا ہے۔ آئیے مل کر اس کی فنکشنالٹی کے بارے میں جانتے ہیں۔ IMS کے حصول کے بعد آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسورڈ دیا جاتا ہے، جس کو یہاں پر انٹر کرنے کے بعد آپ سسٹم میں اپنے داخلے کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ایڈمن اکاؤنٹ بیسیکلی پرنسپل اکاؤنٹ ہے، جو کہ تمام سیٹنگز اور اس سارے سسٹم کو اپنے حساب سے مولڈ کر سکتا ہے۔ سسٹم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے سسٹم میں ٹیچرز کی انٹری کی جاتی ہے۔ ٹیچرز کا ڈیٹا یہاں سے ایڈ ٹیچر سے ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس فارم میں ٹیچر کا ریکارڈ انٹر کر کے ایڈ ٹیچر کا بٹن دبانے پر ٹیچر کا ریکارڈ ایڈ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر بہت سے ٹیچرز کا ڈیٹا پہلے ہی موجود ہے۔ ٹیچر ایڈ کرنے کے بعد ایڈمن کو سسٹم کے اندر کلاس کی انسرشن کرنی پڑتی ہے۔ سسٹم میں 1 سے لے کر 10 تک کی کلاس ایڈ کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کلاس انٹر کرنی ہو تو وہ یہاں سے ایڈ کی جا سکتی ہے۔ کلاسز کے ڈیٹا کو CSV، ایکسل یا PDF میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور کلاس ایڈ کرتے ہوئے کسی بھی کلاس کو کوئی نہ کوئی ٹیچر مختص کیا جاتا ہے، جو کہ اس کلاس کا انچارج ہوتا ہے۔ کلاسز ایڈ کرنے کے بعد اس میں سیکشنز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ڈراپ ڈاؤن سے کلاس سلیکٹ کر کے ہم اس کے سیکشنز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور سیکشن ایڈ کرنے کی ضرورت ہو تو یہاں سے چینج سیٹنگ میں جا کر ایک نیا سیکشن ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہر سیکشن کو ایک ٹیچر مختص کیا جاتا ہے، جو کہ اس کا انچارج ہوتا ہے۔ سیکشن کے بعد اسکول میں پڑھائے جانے والے مضامین داخل کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ کسی بھی کلاس میں پڑھائے جانے والے مضامین کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نیا مضمون ایڈ کرنا مقصود ہو تو یہاں سے ایڈ نیو سبجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سبجیکٹ ایڈ کرنے کے بعد پیرنٹس والے موڈیول میں جایا جاتا ہے، اور اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کے والدین کا ڈیٹا انٹر کرنا مقصود ہو تو وہ یہاں پر ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس ٹیبل میں آپ آلریڈی موجود پیرنٹس کے
डेटा को देख सकते हैं। पेरेंट्स ऐड करने के बाद स्टूडेंट के मॉड्यूल में जाया जाता है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से क्लास सेलेक्ट करके उसमें स्टूडेंट की इंसर्जन की जा सकती है। ऐड न्यू स्टूडेंट पे जाकर क्लास 1 सिलेक्ट करने पर वो उस पे मौजूद तमाम सेक्शंस का डाटा शो करवा देता है सिस्टम। और किसी भी सेक्शन में अगर नए स्टूडेंट्स को ऐड करना मकसूद हो तो वो यहाँ से ऐड किया जा सकता है। स्टूडेंट की इंसर्जन के बाद ग्रेड वाले मॉड्यूल में जाया जाता है और यहाँ में जाकर ग्रेड की सेटिंग की जाती है कि कितने परसेंटेज के बाद कौन सा ग्रेड कंसीडर होगा। अगर कोई नया ग्रेड ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड किया जा सकता है। फॉर्म में डेटा डाल के आप ग्रेड को एंटर कर सकते हैं। यहाँ से एंटर किए गए ग्रेड्स बाद में एग्जाम के रिजल्ट पर असरअंदाज होते हैं। अगर 90 से लेके 100 तक के दरमियान स्कोर करेगा स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में तो उसे ग्रेड ए असाइन किया जाएगा इस सिस्टम की सेटिंग्स के मुताबिक। बेसिक डाटा एंटर करने के बाद हम लोग इस सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम की यूजेबिलिटी में हम अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में जाते हैं जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की अटेंडेंस, टीचर की अटेंडेंस और एग्ज़ाम अटेंडेंस मौजूद है। अटेंडेंस के मॉड्यूल में जाने से पहले हम एग्ज़ाम वाले मॉड्यूल को अच्छे तरीके से समझते हैं। एग्ज़ाम के मॉड्यूल में जाकर हम लोग न्यू एग्ज़ाम ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों को मिड टर्म ऐड करना है या फाइनल ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डेट मेंशन की जाती है, किस तारीख को एग्ज़ाम शुरू होगा वो तारीख मेंशन की जाती है और एग्ज़ाम ऐड कर दिया जाता है। एग्ज़ाम ऐड करने के बाद उसका स्केड्यूल सेट किया जाता है और बताया जाता है कि कौन सा पेपर किस दिन होगा। उसके लिए हम एग्ज़ाम स्केड्यूल में जा सकते हैं। एग्ज़ाम स्केड्यूल में हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जिसमें आप क्लास सेलेक्ट करते हैं। क्लास सेलेक्ट करने के बाद उसके एग्ज़ाम्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है और फिर उसका स्केड्यूल सेट किया जा सकता है। एग्ज़ाम स्केड्यूल के बाद हम अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में जाते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ से ड्रॉप डाउन से क्लास सेलेक्ट की जाती है और क्लास का मुतल्लिका टीचर अपने स्टूडेंट का अटेंडेंस ऐड कर सकता है। इसी तरह टीचर अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में एडमिन यानी कि प्रिंसिपल इंसर्जन कर सकता है।
टीचर इसमें खुद से इंसर्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आज की तारीख आ रही होती है और अटेंडेंस मार्क करने पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है और प्रिंसिपल अपने स्टाफ की अटेंडेंस यहाँ से मैनेज कर सकता है। टीचर की अटेंडेंस के बाद एग्जाम अटेंडेंस का एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें एग्जाम सेलेक्ट किया जाता है, क्लास सेलेक्ट की जाती है और सब्जेक्ट जिसका पेपर होता है वो सिलेक्ट किया जाता है और अटेंडेंस ऐड कर दी जाती है। IMS इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। इसमें ट्रांसपोर्ट ऐड कर दी जाती है और फिर उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। लीव एप्लीकेशन के मॉड्यूल में जाकर कोई भी स्टूडेंट या टीचर अपनी लीव सबमिट कर सकता है जो कि एडमिन अकाउंट या प्रिंसिपल अकाउंट में यहाँ पर दिखाई जा सकती है। स्टूडेंट की तमाम एप्लीकेशंस उससे मुतल्लिका टीचर के अकाउंट में शो होती हैं और टीचर की तमाम एप्लीकेशंस यहाँ पर शो होती हैं प्रिंसिपल के अकाउंट में, जिसको प्रिंसिपल अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। हॉलीडे के मॉड्यूल में कोई भी छुट्टी ऐड की जा सकती है, लाइक कोई भी नेशनल इवेंट हो तो यहाँ पर उसकी छुट्टी हॉलीडे डिक्लेयर की जा सकती है जो कि लेटर ऑन डैशबोर्ड में कैलेंडर में शो हो जाती है और तमाम स्टूडेंट और टीचर उसे देख पाते हैं। ये वो कैलेंडर है जिसमें उन हॉलीडे या इवेंट्स का डेटा शो किया जाता है। इवेंट वाले मॉड्यूल में कोई भी इवेंट ऐड किया जाता है और उसकी डेट और डे और टाइम के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड वाले कैलेंडर में शो कर दिया जाता है। मीडिया के मॉड्यूल में जाकर हम स्कूल के इवेंट्स या स्कूल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या तस्वीर अपलोड कर सकते हैं और वो अपलोडेड तस्वीर तमाम टीचर्स और स्टूडेंट को अरसाल हो जाती हैं और उनमें ये एक्सेस दे दी जाती है कि वो उन तस्वीर और मीडिया को देख सकें। नोटिस बोर्ड के मॉड्यूल में जाकर आप नोटिस बोर्ड में कोई भी अनाउंसमेंट ऐड कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड का मकसद तमाम लोगों में इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। नोटिस बोर्ड से ऐड की गई कोई भी इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पर शो होती है और स्टूडेंट, टीचर्स और प्रिंसिपल अपने अकाउंट से इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन और इवेंट्स की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स अकाउंट से भी देखी जा सकती हैं। विजिटर इंफॉर्मेशन के मॉड्यूल में विजिटर की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ये बहुत ही कारआमद मॉड्यूल है जिसमें अगर कोई भी विजिटर स्टूडेंट से मिलने के लिए आता है तो उसका डाटा इंसर्ट कर दिया जाता है। चेक इन के टाइम पर सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे एक कार्ड जनरेट करके देता है जो कि चेकआउट के टाइम पर उसे सबमिट कराना होता है
اور اگر ہم اس سسٹم کو پرنٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو وہ کارڈ پرنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ وزٹر انفارمیشن کے بعد اگلا موڈیول اکاؤنٹس کا موڈیول ہے۔ اکاؤنٹس کے موڈیول میں ہم لوگ فیس کی انسرشن کرتے ہیں، جس طرح سے اس میں پہلے ہی منتھلی اور ایڈمیشن فی ایڈ کر دی گئی ہے۔ انوائسز میں جا کے ہم لوگ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے نیم کی انوائس جنریٹ کرتے ہیں۔ ایڈ نیو انوائس میں فی ٹائپ سلیکٹ کی جاتی ہے اور پھر اسٹوڈنٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کے نام سے انوائس جنریٹ کرنا ہوتی ہے، اور وہ انوائس پھر اس اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس انوائس کو اس کے پیرنٹ اکاؤنٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں سے ریلیٹڈ انوائسز دیکھ سکتے ہیں۔ بیلنس میں کلاس سلیکٹ کرنے کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو بھی اماؤنٹ فیس جمع کرائی گئی ہوتی ہیں وہ ساری لسٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کچھ پیسے دینے ہوں تو وہ بھی یہاں پر شو ہو جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے اکارڈنگ پرنسپل اپنے اسکول کی ارننگ کو دیکھ سکتا ہے۔ ایکسپینس کے موڈیول میں اسکول سے ریلیٹڈ تمام ایکسپینسز ایڈ کر دیے جاتے ہیں، اور انکم اور ایکسپینسز کو لے کر سسٹم ایک بہت بہترین رپورٹ جنریٹ کرتا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسکول بزنس کس طرح سے کر رہا ہے۔ آئی ایم ایس کے اندر انٹرنل میلنگ سسٹم بھی انٹیگر کیا گیا ہے، جس کے تھرو تمام یوزرز آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ پرنسپل ٹیچرز کو کوئی میل بھیج سکتا ہے، ٹیچرز اسٹوڈنٹ میں کوئی میل تھرو کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ پرنسپل کو کوئی میل بھیج سکتا ہے۔ میسیجز کے موڈیول میں جا کر ہم لوگ کوئی بھی ریسیوڈ میل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح جی میل میں لاگ ان ہونے کے بعد ہم لوگ اپنی میل چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ کوئی بھی نیو میسج جنریٹ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور بھیجے گئے میسیجز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایس کا سب سے امپورٹنٹ موڈیول رپورٹ کا موڈیول ہے۔ رپورٹ کے موڈیول میں ہم لوگ کسٹمائز رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں سے ٹیچر سلیکٹ کر کے ہم لوگ اس کی رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ رپورٹس میں آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس بیلنس رپورٹ، اسٹوڈنٹ انفارمیشن رپورٹ اور کلاس روٹین رپورٹ اور اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس رپورٹ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کسی بھی اسپیسیفک کلاس سے کسی بھی اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کے بارے میں رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ جنریٹ کرنے پر یہ ایک پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ بیک اپ کا موڈیول آپ کے ڈیٹا بیس کا بیک اپ لے لیتا ہے ایس کیو ایل فارمیٹ میں۔
अगर डेटाबेस का बैकअप लेना मकसूद हो तो वो यहाँ से लिया जा सकता है, और अगर उसी लिए हुए बैकअप को इंपोर्ट करना हो तो वो इंपोर्ट के मॉड्यूल से किया जा सकता है। यहाँ से हम टीचर, पेरेंट्स, यूज़र, बुक, स्टूडेंट, इन सब की इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहाँ से वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, अपना लोगो और बाकी इंफॉर्मेशन स्कूल के अकॉर्डिंगली सेट कर सकता है। रीसेट पासवर्ड में जाकर यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। डैशबोर्ड में सिस्टम में मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। डैशबोर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर, पेरेंट्स और अटेंडेंस शो की जाती हैं। अर्निंग ग्राफ बैलेंस के अकॉर्डिंग अर्निंग का एक ग्राफ शो करता है। डैशबोर्ड में नोटिस बोर्ड की इंफॉर्मेशन, इवेंट्स की इंफॉर्मेशन और यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शो करवाई जाती है। IMS यानी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए स्कूल के तमाम कामों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, और स्कूल से रिलेटेड सब कुछ IMS में मौजूद है, और वो अच्छे तरीके से उस डेटा को मैनेज करने में महारत रखता है। शुक्रिया।